Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear student, we have completed the explanation of lesson number 7, energy flow in an ecosystem. We have completed 2 lessons in our E-class. Lesson number 6, classification of plant, and lesson number 7, energy flow in an ecosystem. 2 लेसन कंप्लीट हो गए अपने. काफ़ी फास्ट जा रहा है सिलेबस. जो भी डिफ़िकल्टीज़ होगी आपकी वो नोट डाउन करिए. जब भी क्लासेस शुरू होगी आपकी डिफ़िकल्टी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह. लेट अस रिवाइज द लेसन नंबर 7. रिवीजन लेक्चर ले लेते हैं अपन 7th पे. 7th लेसन अपना ख़त्म हो गया. एक्सप्लेनेशन एक फास्ट रिवीजन के तौर पे रिवीजन लेक्चर अपन रखते हैं. तो ये जो है अपना रिवीजन लेक्चर है. तो लेट अस रिवाइज द लेसन नंबर 7, energy flow in an ecosystem. What is meant by ecosystem? We had learned in this lesson what is meant by ecosystem. Biotic factor, abiotic factor and their interaction with one another form an ecosystem. Which are different type of ecosystem. The different type of ecosystem is grassland ecosystem, aquatic ecosystem, pond ecosystem, lake ecosystem, etc. These are the different type of ecosystem. We had also learned that energy flow in an ecosystem. Living organisms, according to the mode of nutrition, are classified into producer, consumer, saprophytes and decomposer. Saprophytes means organisms that feed on dead animals. Consumers are of 4 types: primary consumer, secondary consumer, apex or top consumer, mixed consumer, etc. देर आर 4 टाइप्स. 4 टाइप के होते हैं: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, अपेक्स और टॉप कंज्यूमर और मिक्स कंज्यूमर. 4 टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं. प्राइमरी कंज्यूमर्स आर कॉल्ड एज हर्बियोर्स. दे आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स, दैट इज प्रोड्यूसर. प्लांट इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर बिकॉज प्लांट इज अ फूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेकेंडरी कंज्यूमर use herbivores as their food. Apex or top consumer use herbivores and carnivores as their food. No other organism feed on top consumer. Lion, tiger is the example of apex or top consumer. कोई भी उनको नहीं खाता है, किसी का फीड नहीं है. फाइनल फीडर भी कहा जाता है उनको. That no one directly eat them. कोई उनको डायरेक्टली खाता नहीं है, किसी का वो जो है वो प्रे नहीं है. Omnivores means mixed consumer. Human bear is the example of mixed consumer. They feed on herbivores and carnivores. We had also learned that what is food chain and what is food web. Let us see the food chain. What is food chain? A definite sequence in the interaction between producer, consumer, saprophytes is called as food chain. Each chain consists of 4-5 more links. फूड चेन में 4-5 लिंक हो सकते हैं. कोई भी फूड चेन के अंदर पहले प्रोड्यूसर होता है, फिर कोई भी कंज्यूमर हो सकते हैं, 2 टाइप के, या सिंगल कंज्यूमर, प्राइमरी, टर्शरी या सेकेंडरी कंज्यूमर. उसके बाद में जो है वो आएगा सैप्रोफाइट्स और डिकम्पोजर. दैट इज नोन एज फूड चेन. फूड चेन इज अ लिनियर. तो दिस इंट्रैक्शन गोज ऑन कंटिन्यूसली बिटवीन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड सैप्रोफाइट. There is a definite sequence in this interaction which is called as food chain. Also we had learned that what is food web. Food web क्या है? An organism may be the prey for many other organisms. For example, an insect feed upon leaves of various plants, but same insect is the prey for different animal. Like frog, wall, lizard, bird, etc. If this is to be shown in the figure, it will form an integrated web instead of linear food chain. Such an integrated network is called as food web. तो food web जो है वो integrated network है, और जो है फूड चेन है वो लीनियर होती है. एक लाइन में अपन फूड चेन लिख सकते हैं. फूड वेब जो है वो इंटीग्रेटेड होती है, नेटवर्क होता है, इंटीग्रेटेड नेटवर्क, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म एक का प्रे नहीं है. एक को खाने वाले बहुत सारे, जैसे इंसेक्ट फीड अपॉन लीव्स ऑफ वेरियस प्लांट, बहुत सारे जो है प्लांट्स के लीव्स पे
इंसेक्ट खाता है, और एक इंसेक्ट को खाने वाले भी बहुत सारे हैं। और जैसे फ्रॉग यहाँ दिया है, फ्रॉग, वर्ल्ड लिज़ार्ड, बर्ड्स, और उनको भी खाने वाले बहुत सारे हैं। और इनको अपन ज्वाइन करेंगे तो एक इंटीग्रेटेड वेब बनेगी, नेटवर्क बनेगा, इंटीग्रेटेड नेटवर्क, दैट इज़ नोन एज फूड वेब। तो फूड वेब जो है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, इंटीग्रेटेड मीन्स कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। We also learn the energy pyramid, tropical level. Different tropical level पढ़े पढ़ने. The amount of matter and energy gradually decrease from producer at lowest level to the top consumer at the highest level. जो प्रोड्यूसर है वो बॉटम में आएंगे ट्रॉपिकल लेवल के, प्रोड्यूसर के बाद हर्बियोस फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल ऑक्यूपाई करेंगे, कार्नियोस सेकंड ट्रॉपिकल लेवल, और ओब्नियो जो है वो थर्ड ट्रॉपिकल लेवल ऑक्यूपाई करेगी। और एनर्जी ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, फ्रॉम लोएस्ट लेवल टू द टॉप कंज्यूमर। ये अपन ने देखा है एनर्जी पिरामिड्स में। फाइटोप्लैंक्टन यानी यूनिसेलुलर अलगी, इसमें कितनी 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। उनको खाते हैं जू प्लैंक्टन मीन्स फिश लार्वी, उनको मिलती है उससे 1000 किलो कैलोरी एनर्जी। और जू प्लैंक्टन को खाते हैं फिशेस को मिलेंगी उससे 100 किलो कैलोरी एनर्जी। और जो है फिशेस खाते हैं ह्यूमन, तो ह्यूमन को बोलेगी 10 किलो कैलोरी एनर्जी। वी ऑल्सो लर्न दैट द फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ अ वन वे ट्रांसपोर्ट। द सन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन ecosystem. Green plants of the ecosystem store some of the solar energy in the form of food. Before reaching the decomposer, this energy is passed from one tropical level to the next. Decomposer dissipates some amount of energy in the form of heat. However, no part of energy ever return to the sun. Hence, such passage of energy is referred to as a one-way transport. सर से एनर्जी लेते हैं प्लांट्स, और कुछ एनर्जी उन फूड में केमिकल एनर्जी के शक्ल में फूड के फॉर्म में उनके बॉडी में जो है वो स्टोर हो जाती है, और फिर प्लांट्स को खाते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूसर को खाते हैं कंज्यूमर, और फिर कंज्यूमर से वो जाती है डिकम्पोजर को, और नो एनर्जी रिटर्न टू द सन अगेन। दैट इज़ वाई द फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ अ वन वे ट्रांसपोर्ट। We had also learned that biogeochemical cycle. What is biogeochemical cycle? The cyclic flow of nutrient within an ecosystem is called biogeochemical cycle. Biogeochemical cycle are of two types, gaseous cycle and sedimentary cycle. So these nutrients necessary for the growth of organisms are continuously transferred from abiotic to biotic factor and biotic to abiotic factor within an ecosystem. This cycle operates continuously through the medium of biosphere formed by the lithosphere, atmosphere and hydrosphere. The recycling of biological, geological and chemical sources of nutrient in the process is a complex process and depend upon the level of energy transfer in the ecosystem. So there are two types of biogeochemical cycle, gaseous cycle, sedimentary cycle. Gaseous cycle is speedier cycle as compared to the sedimentary cycle. So let us see the first biogeochemical cycle, gaseous cycle, the carbon cycle. The circulation and recycling of carbon from the atmosphere to the living organism and after that back to the atmosphere is called as carbon cycle. Abiotic carbon atoms are circulated and recycled into biotic form mainly through photosynthesis and respiration. Plant convert carbon dioxide into carbohydrate. Here the two reactions are here. This is energy pyramid. Next see biogeochemical cycle, which we have learned. Biogeochemical cycle. After biogeochemical cycle, the carbon cycle. So this plant convert carbon dioxide into carbohydrate. Here glucose. Plant take carbon dioxide from the atmosphere and water from the soil, and in the presence of sunlight and chlorophyll, they convert it into a carbohydrate. Here glucose is a type of carbohydrate, and water and oxygen. Oxygen is released in the atmosphere. This is photosynthesis. Similarly, they produce carbon compound like protein and fat.
Herbiose feeds on plant, carnios feed upon herbiose. In this way, biotic carbon is transferred from plant to herbiose, from herbiose to carnios, and from carnios to apex consumer. Eventually, after the death of all type of consumer, decomposers like bacteria and fungi decompose their body, and carbon dioxide is released again into the atmosphere and used again by the living organism. In this way, carbon is continuously passed on from one living organism to the another. This is known as carbon cycle. After the death of living organism, carbon goes to the atmosphere and is again taken up by the living ऑर्गेनिज्म. तो दो रिएक्शन होती है इसमें, एक फोटोसिंथेसिस, एक रेस्पिरेशन की रिएक्शन है. सेलुलर रेस्पिरेशन में जो है जो ये कार्बोहाइड्रेट बनता है ग्लूकोज, वो ऑक्सीजन उसमें से ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो एक्सेल हो जाता है वाटर, और एनर्जी मिलती है इससे. और जो है ऑक्सीजन जो है वो प्लांट प्रिपेयर करते हैं ऑक्सीजन, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड है जो रेस्पिरेशन से जो है रिलीज़ हो जाता है. तो यहाँ पे दोनों प्रोसेस फोटोसिंथेसिस और जो है सेलुलर रेस्पिरेशन होती है. फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो है रिलीज़ हो रहा है और ये सेलुलर रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है. तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये दोनों प्रोसेस से जो है ये कार्बन साइकिल जो है कार्बन जो है सर्कुलेट होते रहता है. दैट इज़ नोन एज कार्बन साइकिल. नेक्स्ट सी द ऑक्सीजन साइकिल. कार्बन जो है कार्बन का परसेंट, कार्बन कॉन्स्टिट्यूट 0.04% इन द अर्थ एटमॉस्फेयर. नाउ सी द ऑक्सीजन साइकिल. अब देखिए ऑक्सीजन साइकिल. %21 है ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में. ऑक्सीजन फॉर्म 21% ऑफ द एटमॉस्फेयर. इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर में वाटर में H2O कंपाउंड है वाटर, उसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है. लिथोस्फीयर में लैंड में भी ऑक्सीजन होती है. सर्कुलेशन एंड रिसाइक्लिंग ऑफ ऑक्सीजन विद इन द बायोस्फीयर इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन साइकिल. दिस साइकिल टू इंक्लूड्स द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट. ऑक्सीजन इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस एज वेल एज यूज अप इन द एटमॉस्फेयर. कंटिन्यूसली प्लांट्स इसको बनाते रहते हैं. एनिमल्स जो है ऑक्सीजन में को लेते हैं ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, और फिर उनके बॉडी में जो है सेलुलर रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ब्रेकडाउन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल होता है उससे, ऑक्सीजन से, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं. एनिमल्स गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड और प्लांट एब्सॉर्ब दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस फूड मटेरियल, और प्लांट उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं. तो ऑक्सीजन इज रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वेयर इट इज़ यूज अप इन द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, कंबशन के लिए भी ऑक्सीजन ज़रूरी है. एयर से ऑक्सीजन यूज अप होता है कंबशन में. जब कोई भी चीज़ बर्न होती है तो उसको बर्निंग के लिए ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन बर्न होता है, ऑक्सीजन सपोर्ट करता है बर्निंग को. ऑक्सीजन ज़रूरी है कंबशन में. नेक्स्ट एंड द लास्ट, द नाइट्रोजन साइकिल. The nitrogen forms 78% of the maximum portion of the atmosphere, or it is necessary for the maintenance of cycle of nature. Nitrogen 78% है atmosphere में. The circulation and recycling of nitrogen gas into the form of different compound through various biotic and abiotic process in nature is known as nitrogen cycle. All organisms participate in the nitrogen cycle. It is an important constituent of protein and nucleic acid. As compared to the other element, this nitrogen is inactive. Oxygen active पढ़ा है इस लेसन में अपन ने, और जो है नाइट्रोजन as compared to the other element it is inactive and does not easily combine with other elements. Most organism cannot use the free form of nitrogen. Most organism free form यूज़ नहीं कर सकते, उसका फिक्सेशन ज़रूरी है. तो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल में 4 प्रोसेसेस है. एक नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक अमोनिफिकेशन, एक नाइट्रिफिकेशन और एक डेंट्रिफिकेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट थ्रू एटमॉस्फेरिक, इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस. अपन ने डिटेल में पढ़ा है ये कि एटमॉस्फेयर में कैसा थंडरिंग के टाइम जो है ऑक्सीजन कंबाइन होता है, नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, और इवेंचुअली वो बाद में धीरे रिएक्शन के बाद में नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है. सॉल्ट के साथ मिक्स होने के बाद सॉइल में
जाने के बाद नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। इंडस्ट्रीज़ में भी अपन जो है नाइट्रोजन के को फिक्सेशन कर सकते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन्स कंपाउंड में कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ के अंदर नाइट्रोजन से अपन अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बना सकते हैं। अमोनिफिकेशन, रिलीज ऑफ अमोनिया थ्रू डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज एंड excretory waste of organism, that is known as ammonification. During decomposition process, the release of ammonia is known as ammonification. Nitrification, conversion of ammonia into nitrate and then nitrite and then nitrate. Conversion of ammonia into nitrite and then nitrate is known as nitrification. Denitrification means conversion of nitrogen compound into gaseous nitrogen. Again denitrification में again ये जो है गैस स्टेट में नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाता है। इस तरह ये कंटिन्यूस साइकिल शुरू रहती है। नाइट्रोजन का पहले फिक्सेशन होना, फिर अमोनिया डेड बॉडीज से रिलीज़ होना, फिर कन्वर्शन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, नाइट्रिफिकेशन होता है। फिर डेंटिफिकेशन में जो है गैसेस नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में निकल जाता है और इसलिए जो है मेंटेन रहता है 78% जो है नाइट्रोजन यूज़अप होने के बाद भी उसका जो है मेंटेन रहता है परसेंटेज एयर के अंदर। डेंटिफिकेशन में नाइट्रोजन अगेन रिलीज इन द एटमॉस्फेयर, तो दिस इज़ known as nitrogen cycle. So this is the revision lecture, that is why it is fast. डिटेल में हमने आपको नाइट्रोजन साइकिल प्रीवियस वीडियो में पढ़ाए हैं। तो ये लेसन यहाँ कंप्लीट हुआ। थरोली लेसन रीड करो। इस पे ऑब्जेक्टिव की टेस्ट अभी इंशाल्लाह लेंगे अपन नेक्स्ट वीक। और जो है इसके एक्सरसाइज अब आपको लिखना है और एक्सरसाइज जैसे आप आएंगे आपको नोटबुक आपकी सबमिट करना है। और जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको होमवर्क आपका है कि ऑब्जेक्टिव्स इसके लर्न करिए। ऑब्जेक्टिव्स में जो है हर क्वेश्चन पे हर जो है सेंटेंस पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। एक लेसन पे आप छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव टाइप बना के रखिए और वो उसी पे हम आपका टेस्ट लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।